So dreams are just starting point. Actions have to follow dreams. Some people, a lot of us, tend to take dreams and actions lightly. Let me remind you that miracles and magic happens, but it is still restricted to folklore, stories, and possibly TV serials. Miracles happen, but they just don't happen with everybody and anybody. Miracles can happen to you and me, but you have to do something to be in a stage when a miracle can happen to you. And that is where the dreams bring you closer to action and miracles. But please remember, if you wait for miracles, you might wait till death. But if you do something about your dreams, you can make the miracles happen before time. That is what you need to understand. You need to get your hands dirty. You have to get that sweat out. Dreams are not cheap. In fact, they are the costliest. Why? Imagine, if dreams are cheap, if they are called dreams, if they are cheap, everybody would have it. So if everybody wants to be a prime minister, only one person can become. If everybody wants to be Warren Buffett or Rakesh Jhunjhunwala or some great businessman, Dhirubhai Ambani or somebody, only a few make that cut. Why? Because dreams are not cheap. It's just not about thinking about a dream. It's about the doability of the dream as well. Whether you can achieve something, well, people might question me that if you start questioning the dream, whether it is doable or not, then probably you will put an end to a lot of dreams. But please remember, there is a cost to thinking about a dream and then acting on the dream to make that happen. How many of us are ready to pay that cost? So what is the cost for an entrepreneur? Look at it from that angle. There is a cafe in IIM Ahmedabad, 2002. We were a part who started this cafe along with students. It is called TANSTAFL, TAANSTAFL. It's just an acronym. The TANSTAFL, that acronym I was talking about, uska matlab hai, there ain't any such thing as free lunch. दुनिया में कोई चीज फ्री की नहीं होती. Even a child pays for his mother's love with the discipline that the mother expects from him or her. At every level, there is an expectation, and the expectation from a startup entrepreneur who has a dream is what is the price he is ready to pay for the struggle. So what is the price that he needs to pay? He needs to pay with his time. He needs to pay, can I shorten this? Okay, I can't. So he has to pay with his time, energy. He has to pay with some resources. He has to pay with relationships. He has to pay with, at the cost of sometimes your own stress and the energy that you spend out of doing. As I said, magic and miracles happen, but you have to work hard to go towards, create a circumstance for that magic and miracle to happen. Why it is called a magic or a miracle? Because there is a dream behind that supports you. Let me share a secret with you all. See, the path, the experience of pursuing your dreams is often more rewarding, more enlightening than the achievement of the dreams themselves. Look at the statistics on one side, that 90 to 95% of startups would tend to fail. What do you call a failed startup? A startup which has been able to prove the proof of concept,
They have a product or a service in hand. They have tested it with the test audience, the low-hanging fruits. They have been able to sell a few pieces or a few services to a few people, and then now they are looking to scale up. A scale-up requires an organization, more efforts, advertising, marketing, production, and everything else that you want to create to get the customer, to acquire the customer. That path, the experience, can lead to success or may not. Here in this case, we see that the success of an entrepreneur in being able to reach a scale-up stage, till that point, that person would be happy, very happy and driven. And at that point, if he does not get the supporting investments in time, he may have to stop. There are many other reasons also why a startup doesn't see the light of the day. It doesn't get enough investment. It doesn't grow big. But please remember, as I said in the beginning, an entrepreneur never fails. An effort can fail. A startup venture can fail. If you see how many of the entrepreneurs around would stop after doing one venture. I feel that almost everybody around has 2 or 3 things to depend on in life for vocation. Something is working out, that person is happy. Something is not working out, there is a plan B, there is a plan C. Though I am of the opinion that if you have a plan B, plan A will not work. I am of the very firm opinion. If you have options, then you always switch between options. अरे ये नहीं होगा तो वो कर लेंगे, वो नहीं होगा तो वो कर लेंगे. Anyways, I'll keep that discussion aside. The important point is the path, the experience of failure also. Some people who are successful, they will carry on. They will carry on to become some Goel, Bansal, Flipkart, Oyo, Airbnb, anything and everything that is counting in the big unicorns. But there is a mass of 90 to 95% entrepreneurs who will keep testing out till they become successful or till they get an option which, you might feel tired after a certain point of time. A failed entrepreneur, let me give you that secret is now here. A failed entrepreneur is a much richer and proven resource for business recruitment than a careerist. And I don't have 100% of the examples, but I'm fairly sure 99 out of 100 failed entrepreneurs will be preferred over a careerist, a person who comes out of college and looks for a job and then goes and does that job over and over again. Compared to that, if there is a company who is looking for hiring new people, if there is a chance that they can hire, a failed entrepreneur, he's a much richer resource. Because where do you get this experience of doing everything with your hands? कहाँ ऐसा मौका मिलता है, कहाँ इस तरह के स्टेज मिलते हैं जहाँ पे आप अकाउंटिंग भी किए हुए हैं, प्रोडक्शन भी किए हुए हैं, क्वालिटी टेस्टिंग किए हुए हैं, फाइनेंस के लिए इधर उधर भागे दौड़े हुए हैं, मार्केटिंग किए हुए हैं, डिजिटल करते हैं, कस्टमर से बातें करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. कहाँ पे एक बंदा शुरुआत में every startup, an entrepreneur is almost doing everything. ये जो 2 साल MBA करके जो लोग सीखते हैं, वो अगर आपका प्रोडक्ट रेडी है और मार्केट में है तो वो हर महीने और हर दिन सीखता है आपका एंटरप्रेन्योर, एक स्टार्टअप प्रमोटर. Every day is a learning day. So what I'm trying to say is the process itself is so rich
that your plan B is always ready. Your plan B, that is, what is the plan B? अगर आपका अपना स्टार्टअप एफर्ट काम किया, अच्छी बात है, नहीं किया तो मैं क्या करूंगा? What if? The most dreadful question that an entrepreneur keeps asking every day, what if? There are doubts, there are insecurities, and hence a lot of people plan B. कि ये नहीं हुआ, नहीं चलेगा, तो मैं कौन सा दूसरा बिजनेस में हाथ लगाऊंगा, कौन सा दूसरा प्रोडक्ट होगा, कौन सा दूसरा सर्विस होगा, कौन सी ऐसी टीम है जिसके साथ में मैं लग करके और एक नया एफर्ट शुरू कर सकता हूं। और अगर ये सब नहीं हुआ, जो एंटरप्रेन्योर है अंदर आपके, वो मरता नहीं है कभी, वो कहता है कि लेट मी टेक अ ब्रेक। अगर वो प्लान बी भी लेता है तो वो कहता है लेट मी टेक अ ब्रेक, कहीं काम करता हूं मैं 7 साल, बट आना है मुझे यहीं पे, करना है मुझे यही, कुछ बड़ा करना है। दिस इज कॉल्ड अ ड्रीम। ये ड्रीम जो है आपके कैरियर के मूव्स को भी प्रीएम्प्ट कर देती है। वो कहती है कोई बात नहीं, एक काम किया नहीं हुआ, ठीक है, ड्रीम वेट करेगा, लाइफ है मेरे सामने, अभी मैं कुछ वक्त के लिए कुछ और करता हूं, पर वापस आऊंगा इस पे। आपको मैं अपनी लाइफ का एग्जांपल बताता हूं। मैं पब्लिक सेक्टर में था 7 साल, सिविल सर्विस क्लास 1 में आईएएस आईपीएस सब तरफ मेरे अपने बैचमेट्स हैं। मैं रेलवेज में था, 5 साल वहां काम किया, 5 साल आईआईएम अहमदाबाद में पीएचडी किया, 4 साल हिंदुस्तान के बाहर मैं आई वाज सीईओ ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी सब्सिडियरी। वापस इंडिया आकर के मैंने अडानी ग्रुप का इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सेटअप किया और फिर एक यूनिवर्सिटी गुड़गांव में मैं वाइस चांसलर था। इतना करने के बाद में अगर एक हिम्मत रही कि मैं अब निकल करके एक यूनिवर्सिटी सेटअप करूंगा, उसके पीछे 2 कारण थे। एक ये कि एक ड्रीम थी दिमाग में कि दुनिया में जो कर सकता था एक आदमी अचीव, वो मैंने कर लिया है, लेकिन एक चीज जो मैं नहीं कर पाया क्लियरली, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। इसलिए मेरे जीवन में जितने लोग आए, उनमें से जितने स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने शुरुआत 0 से करी, न कि चांदी की चम्मच से। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जिन्होंने शुरुआत खुद से करी, उनकी मेरे मन में बहुत बड़ी इज्जत होती है। दूसरी बात जो इस एक्सपीरियंस से मैं बताना चाह रहा हूं कि एक ड्रीम जो है दिमाग में कि किसी एक वेंचर को सक्सेसफुल करना है, एक क्या, फिर अब तो जब करने लगे तो मुझे लगा कि 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, किन इलाकों में, किन सेक्टर्स में करना है। तो मैंने अपने लिए सोशल इम्पैक्ट चूज किया। आप हम कोई भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर गुड्स, फूड प्रोडक्ट्स कुछ भी ले सकते हैं। मैंने शुरुआत एजुकेशन प्रोडक्ट से करी थी और उसके बाद सोशल इम्पैक्ट में। पर जो ड्रीम है वो कभी न कभी होकर के रहेगी। आज मेरी उम्र 52 साल है, बट मैं अपने आप को 52 को उल्टा 25 भी नहीं समझता। वो इसलिए कि मेरे अंदर एक जो फायर है वो मैं चाहता हूं कि वो जगी रहे। जिस दिन मेरे को लगने लगेगा कि अब वक्त खत्म हो गया है, अब जूते टांग देने चाहिए, वो दिन के बाद में आपका शरीर भी आपके बस में नहीं रहेगा। Next, I want to speak. There is a chat window. I can see some of the chat. Let me address some of the chat first. Let's be interactive. That's what Dharmendra says. Please open my video. Hello, everyone. This is Dr. Mehul, Associate Professor, Microbiology. Dhruv says, sir, I want your guidance. Whenever I have some ideas, I think of it for a few days, but always end up thinking of investments and how everything will turn up, how I will start in that direction. And the things is I end up dropping that idea. Please help. ये ध्रुव है ना? Okay. ध्रुव, ये समस्या खाली आपकी नहीं है. This is a very common problem that when you look at the hierarchy, for every, let us say today there are 100 successful entrepreneurs.
there are 10 unicorns, there are 100 very successful companies, there are 1,000 good and successful companies, there are 5,000 companies who have got it right and they will become successful. So this total will become about 10,000. Then comes, there are 1 lakh companies which are in line to try to secure a business model. And then there are 10 lakhs of entrepreneurs. There are 10 lakhs of startup founders, potential founders who are grappling with ideas. क्या करना है? अगर आइडिया आ गया तो कैसे करना है? ये ध्रुव, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये समस्या खाली आपकी नहीं है, इसको थोड़ा सा वक्त और रुक जाइए. We will try to address it by this end of this. Let me take 5 more minutes and then I will keep it open only for questions. एक स्पीड भी इंपॉर्टेंट होती है कि आपका ड्रीम हो गया, आपने एक्शन पे कदम रख दिया, अब उसकी स्पीड क्या है, कैसे आप कर रहे हैं. आप उसको एक लेजरली पेस से आराम आराम से चलता हुआ, ये ड्रीम कभी अचीव नहीं होगा. बिकॉज आप याद रखें कि कंपटीशन है जो बिजनेस में सबसे बड़ा दानव है, सबसे बड़ा चैलेंज है. और वो इसलिए है कि जैसे आपका दिमाग काम करता है वैसे हजारों और लोगों का भी काम करता है. जैसे आपको अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं वैसे हजारों और भी हैं जिनको साइमल्टेनियसली वो अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं. वो हो सकता है वो बाकी 1000 में से 20-25 तो आपके अपने शहर में हो. You don't know. You don't know if you are sitting in Gujarat Technological Innovation GTU Council, that building, the next this Gujarat University building, there is an innovation incubation center. You may not even know कि आपके जैसे आइडिया के 2 वहां पे भी कर रहे होंगे. ये जस्ट दीवार ही तो कॉमन, बीच में एक रोड ही तो है. The point is, आपका जो स्पीड ऑफ एक्शन है, that has to match the scale of your dream. Do we understand this? सपना जितना बड़ा होगा, मेहनत, लगन और स्पीड उतनी ही बड़ी रखनी पड़ेगी. आपसे अकेले से नहीं होता है तो आप को फाउंडर देखें. ये शुरुआत में एक ज्ञान की बात जरूर है कि जिन लोगों ने किया हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप, वो आकर के आपको इतना तो गाइड इजीली कर सकते हैं आपके आइडिया को सुन करके कि आपके अकेले की बस की बात नहीं होगी या होगी, और आपको किस तरह के लोग, साथी, को फाउंडर्स खोजने चाहिए. ये जरूर है क्योंकि ये इतना तो पक्का है कि बहुत बिरले लोग ऐसे होते हैं जो हर तरह से सक्षम होते हैं. There are rare people who are superhuman beings who know each and everything about business, that they can individually do everything. ऐसा होता नहीं. Okay, so speed is important. अगर जरूरत पड़े तो पार्टनर्स, एसोसिएट्स खोजिए, लेकिन समय आप जाया नहीं कर सकते. नेक्स्ट, आइडियाज बहुत, चारों तरफ हजारों आइडियाज हैं. ये देखिए आपका पॉइंट ध्रुव टच हो रहा है अभी कि ड्रीम जो है वो आइडिया को जन्म देता है. आपके मन में अगर कभी किसी चीज की कमी नहीं रही होगी तो उसकी आप कभी वैल्यू नहीं कर पाएंगे. पैसा, अगर आप बहुत रिच फैमिली से आते हैं तो आपके लिए 5 रुपया 10 रुपया इंपॉर्टेंस रखता ही नहीं है. उस 5-10 रुपए में किसी का पूरा एक खाना हो जाता है. एक गरीब आदमी के लिए 5-10 रुपया भगवान का भेजा हुआ प्रसाद होता है. उसी तरह से कुछ भी उठा लीजिए, भले वो गद्देदार बिस्तर हो, एक्शन के जूते हो, अरमानी का सूट हो, या फिर 200 रुपए का स्पेक्स ही हो, क्योंकि 200 रुपए के चश्मे के पीछे भी 100 रुपए और 80 रुपए के हजारों चश्मे बिकते हैं. आइडियाज निकलते हैं आपकी ड्रीम से. ड्रीम जितनी बड़ी होगी, आइडियाज उतने स्ट्रॉन्ग, बड़े, और भविष्य में उसका ज्यादा स्कोप हो, ऐसे हो सकते हैं. लेकिन ये आपस में मैच ऐसे नहीं खाता कि ड्रीम बड़ा होगा तो आइडिया भी बड़ा होगा.
कुछ आइडियाज मिल करके एक ड्रीम तक पहुंचा सकते हैं। एक आइडिया शुरुआत में छोटा होगा, धीरे धीरे वो बड़ा हो सकता है, और जर्नी के दौरान आपका जो जो रास्ता होगा उस दौरान आप देखेंगे कि वो आइडिया किस तरह से अपने आप में बड़ा होता है। लेकिन कोई आइडिया छोटा नहीं है, आइडिया सब तरफ होते हैं। मोस्ट पीपल जितने आसपास होंगे आप देखेंगे किसी चाय की थड़ी पे बैठ गए, किसी किसी मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट में कॉफी डे में बैठ गए, और वहां जब बातें करोगे आप तो 50 आइडियाज निकलेंगे। आज की डेट में अभी आप देखिए जूम में मेरे को हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जूम जैसा एक प्लेटफॉर्म हम बनाएंगे तो अभी तो बहुत स्कोप है। इंडिया में 50 जूम का स्कोप है। जूम जैसे सॉफ्टवेयर्स 50 भी और कंपनीज होंगी, तो अभी आप देखेंगे आप मार्केट में किस तरह से इस टाइप के ईआरपी बना बना करके और सॉफ्टवेयर बना बना करके लोग आएंगे, क्योंकि अब ये खुल गया है बिजनेस। नॉलेज अब आ गई है लोगों को, कमियां नजर आ गई है लोगों को, कस्टमर फीडबैक मार्केट में बहुतेरा मिल रहा है अभी। अच्छा, देन नेक्स्ट आई वांट टू टच अपॉन अ फ्यू मोर थिंग्स। आपके जर्नी में जो जो सपना है, वो सपना उस दिन पूरा नहीं होता है जिस दिन आपके सपने का आखिरी स्टेप पूरा हो गया। आप फिर समझिए इसको। What I'm trying to say is, your dream is not complete on the day when the entire dream is accomplished. It is accomplished every day. If you can break down your dream into an idea and break that down into activities, 1 महीने में ये होगा, 2 महीने में ये होगा, 3 महीने में ये होगा, साल भर में ये होगा, वो जो छोटे छोटे सक्सेस हैं उनको एंजॉय करेंगे तो एक नई एनर्जी आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी सपने के रास्ते में चलते हुए उसको पाने के लिए। एक और ध्यान रखें कि जो जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योर है वो जर्नी ऑफ ड्रीम्स है। 99% से ज्यादा कैरियरिस्ट इंक्लूडिंग आईएएस आईपीएस, बहुत हम लोगों के मन में बड़ी इज्जत रहती है उनके लिए, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। इनफैक्ट आज के वक्त में तो गवर्नमेंट के जो सेटअप्स हैं उन्होंने ही सबसे ज्यादा काम करके स्थिति संभाली हुई है, आप देखें। लेकिन 99% से ज्यादा कैरियरिस्ट जो हैं दे आर नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज वो फायर नहीं जगा पाते हैं अंदर एवरी डे कुछ अचीवमेंट करने की। एवरी डे उन्हें लगता है कि कल जो किया उसमें थोड़ा सा इंप्रूव ही तो किया है। और कई लोग खाली इस ताक में, इस इंतजार में रहते हैं कि साल खत्म हुआ, 10, 20, 30% रेज इन सैलरी मिला और आगे बढ़ गए, हम ग्रो कर रहे हैं। मेरी माने तो एंटरप्रेन्योर की लाइफ में आप किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से बात करें, रवीश अग्रवाल या जो भी ओयो के हैं, वो मात्र 31, 32, 33 साल के हैं। उनसे, उनके सामने आप बैठ के बात करेंगे, ऐसे लगेगा कि जैसे भीष्म पितामह बात कर रहा हूं अपने बिजनेस के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में। और जब बिजनेस में सक्सेस आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है, तो दुनियादारी भी आ जाती है। आप इजीली किसी 25 साल के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को आप एक क्राउड के अंदर आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं द मोमेंट यू स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद दैट पर्सन। एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी, लाइफ स्टेज को जानने की ये जो फायर होती है उनके अंदर, उसको देख देख करके जो कैरियरिस्ट होते हैं वो खुद ये सोचते हैं यार कहाँ फंस गए। लेकिन फिर क्या है ना कि कंफर्ट जोन ऐसी चीज है जो बड़ी मुश्किल से भूलती है। कंफर्ट जोन के बाहर कोई नहीं आना चाहता। रॉबिन शर्मा बोलता है, Robin Sharma, we all know that he's a person who speaks motivation about. He says, you have to find comfort with yourself in order to let your dreams flourish. यानी आप खुद को जानते कितना हैं, वही आपको ड्रीम्स के बारे में सृजन भी करेगा और ड्रीम्स को रास्ते में लाने के लिए, एक्शन के लिए प्रेरित भी करेगा। वो कहता है कि आप कुछ समय अपने साथ बिताइए, टेक लॉन्ग वॉक्स बीइंग विथ योरसेल्फ, अपने साथ अकेले,
लंबी वॉक पे जाइए, सोचिए क्या कर सकते हैं आप, एक डायरी लिखिए, रिजोल्यूशंस बनाइए। छोटे रिजोल्यूशंस अचीव होते हैं, बड़े रिजोल्यूशंस बनाइए। ये सब रिजोल्यूशंस का जोड़ ही तो एक ड्रीम है। जॉन वुडन कहते हैं, डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स और योर ड्रीम्स विल गिव अप ऑन यू। आपको बहुत सारे लोग स्टार्टअप कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, उसकी टेस्टिंग कैसे करनी है, आइडिया कितना अच्छा है कितना बुरा है। स्टार्टअप भी तो अभी एक पूरा एमबीए स्टाइल में आप साल भर तक आप बातें करो तो स्टार्टअप की दुनिया की नॉलेज की बातें पूरी नहीं होती। मैंने आज खाली आपको इस चीज के ऊपर फोकस किया है कि अगर आपके पास ड्रीम है एक अच्छी, मैं सम अप कर रहा हूं अपनी बात को, उसके बाद हम चैट के ऊपर ही जाएंगे विंडो पे, कि जिंदगी में अगर एक ड्रीम नहीं है तो कुछ नहीं है। कोई ड्रीम सस्ती नहीं होती, ड्रीम्स हर एक के भक्ति की बात नहीं होती। ड्रीम हुआ और एक्शन नहीं हुआ तो ड्रीम्स के कोई मायने नहीं। ड्रीम्स के लिए एक प्राइस पे करनी होती है, उस प्राइस पे करने की रेडीनेस नहीं होगी तो आप ड्रीम कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। ड्रीम जिस दिन पूरा होता है उस दिन वो ड्रीम अचीव नहीं होता है। ड्रीम को टुकड़ों में बांटना पड़ता है और हर छोटे टुकड़े की खुशी को फील करना होता है। बिना एक्शन के ड्रीम एक इकलौता प्राणी रह जाएगा जिसका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा। अगर ड्रीम है आप में तो आप आसमान छू सकते हैं, अदरवाइज ड्रीम नहीं है आप में तो आप एक साधारण प्राणी बन करके जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, मैं छोड़ता हूं कि आप बनना क्या चाहते हैं। एवरी एंटरप्रेन्योर is a dreamy person. My special respect goes to every entrepreneur because वो ऐसे हैं, उनसे बड़ा वैल्यू कोई जनरेट नहीं कर रहा है लाइफ में भी। और इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी हो या बाहर की इकोनॉमी हो, आप ये जान लें कि गवर्नमेंट का रोल कम होते जाएगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज बनाने वाले बड़े ऑर्गेनाइज प्लेयर्स, उनके पास भक्ति है मशीन खरीदने की, वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। रिच बनने के यानी धनी बनने के तरीके अब खाली रास्ते खाली एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू रह गए हैं। मैं दूसरे रास्ते की तो बात ही नहीं करना चाहता, कुछ लोग ऐसे हैं जो वो भी करते हैं, बट एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू आप वो यूनिकॉर्न 10,000 करोड़ वाले मालिक भी आप ही बन सकते हैं। लेकिन साथ में आप क्या क्या कर सकते हैं जो आप जानते नहीं है, अपने आप होते जाता है कि आप इंडियन इकोनॉमी के लिए जीडीपी बनाते हो, इंडियन इकोनॉमी के लिए जॉब्स जनरेट करते हो, इंडियन कस्टमर्स के लिए सॉल्यूशंस जनरेट करते हो। एक ड्रीम हो तो क्या बात है, नहीं ड्रीम हो तो लाइफ चलती है। So we have a question from Dhruv says, I want to take your guidance whenever I come up with ideas or think of it for some days. I always end up thinking of investments. देखो काफी लोग आपको ये सलाह राय देंगे कि आइडिया पैसे का मोहताज नहीं होता है। अगर आपके पास आइडिया है तो आज गवर्नमेंट भी आपके आइडिया के पीछे पैसे लगाने को तैयार है। आपको खाली एक इकोसिस्टम खोजना है जहां पे आप उस आइडिया पे काम कर सकते हैं। बट कच्चे आइडियाज की कोई जगह नहीं। ऐसे आइडियाज जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं उनकी कोई जगह नहीं है। ऐसे आइडियाज जो आपको लगता है कि बहुत शानदार है और आपके दोस्त साथी आपका पीठ थपथपाते, अरे यार क्या आइडिया निकाला है, उससे ज्यादा बढ़ करके एक न्यूट्रल बायर कंज्यूमर क्या उस आइडिया के लिए पैसे देने को तैयार होगा, वो खरीदेगा। वो मापदंड आप बहुत कम लोग चेक कर पाते हैं। इसीलिए शानदार प्रोडक्ट होने के बावजूद कई स्टार्टअप्स उठ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कस्टमर न तो विलिंग है और न क्षमता है उस प्रोडक्ट के लिए पे करने की। तो आइडियाज लेवल पे ही फेलियर ज्यादा होते हैं। और अगर आपका आइडिया अच्छा है और आपने उसके ऊपर काम किया है, भले वो अपने लेवल पे काम किया हो, किसी मेंटर के साथ काम किया हो, किसी
साथी को फाउंडर के साथ में काम किया हो, अगर आप किसी आइडिया को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करता है और क्या कितना मुश्किल या आसान होगा उस प्रोडक्ट और सर्विस को बनाना, आपको इन्वेस्टमेंट्स मिल जाएंगे। आप करके देखिए। ये आज की डेट में मैं समझता हूं, मैंने तो लाइफ में वो पीरियड भी देखा है जब एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कोई बात ही नहीं करता था। आज की डेट में हर कॉलेज, हर बड़े कॉलेज में इंक्यूबेटर मिलेंगे आपको, जो कि आइडिया स्टेज से लेकर लोगों को सपोर्ट करते हैं, ऑफिस देते हैं, ऑफिस की सारी सुविधाएं देते हैं, और उसके बाद में आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लगे रहे अपने सपने पे, और जो आपने प्रॉमिस किया है, जिसके लिए हमने आपको जगह दी है, उसको आप बना करके लाइए मार्केट में। वहां से आप देखेंगे कि स्टेज 2 में आपको मार्केटिंग करने के लिए भी पैसे मिलते हैं, आपको प्रोडक्ट स्केलिंग अप करने के लिए भी पैसे मिलते हैं थर्ड स्टेज पे। ये इतना बड़ा इकोसिस्टम है। मैं समझता हूँ सिर्फ 10 साल के अंदर, अगर 10 साल पहले खाली आईआईएम्स या कुछ लोग अगर करते होंगे और 100 करोड़ का बजट होगा, तो आज मैं समझता हूँ अगर सारे बजट्स को मिला दे, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट एंटरप्राइज भी हैं जो कि अपने प्रमोटर के एक्सटेंशन सेल्स में वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं स्टार्टअप्स में। उन सब को मिला करके देंगे तो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इकोसिस्टम होगा आज की डेट में। तो मैं समझता हूं कि बात प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट्स की नहीं है, क्या आपने सफिशिएंट समय दिया है अपने प्रोडक्ट को समझने में, क्या प्रॉब्लम वो सॉल्व करता है और कितना मुश्किल या आसान होगा। और ये आप ही नहीं कन्विंस हो, आप किसी थर्ड पर्सन को दें या फिर किसी इंक्यूबेटर को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को दें जो आपको सपोर्ट कर सकता है, उनको भी कन्विंस होना चाहिए। That is what I have an answer for Dhruv. GS. Sir, I am a jeweler. I just opened a showroom in June 2019. Since then, prices have increased 30%, so investment has increased. Sales have decreased. And now this lockdown. Mr. GS, जो भी आपका फुल नाम होगा, देखिए मैं नहीं कहता कि हर समय में, देखिए 2019 जून में जिसने एक मास्क बनाने की फैक्ट्री लगाई होगी, जिसने एक सैनिटाइजर बनाने की फैक्ट्री लगाई होगी, आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। और उसी पीरियड में जिसने एक प्रोजेक्ट चालू किया होगा रियल एस्टेट का, आप अपने आप को बीच की कहीं रेंज में पाएंगे। आपसे बुरे हालात बहुत सारे लोगों के और होंगे, और उसी पीरियड में कुछ और बिजनेस शुरू करने वालों के हालात बहुत अच्छे भी होंगे। ये समय है, निकल जाएगा। रहा सवाल कि प्राइस इंक्रीज हो गई है 30%, तो आपने बिजनेस जब लगाया था तब एक फिक्स प्राइस के ऊपर तो लगाया नहीं था। आप ये तो सोच करके चल ही रहे थे कि जब बढ़ेगा तो भी सेल होता है, जब घटता है तो भी सेल होता है, जब घटेगा तो ज्यादा सेल होगा, उस वक्त आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ऑब्वियसली क्यों तकलीफ होगी भाई, ज्यादा सेल हो रहा है, ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तकलीफ हमेशा जब कम सेल होता है, कम प्रॉफिट होता है, तब होती है। लेकिन आप मान के चलें कि ट्रेडिंग टाइप के बिजनेस में घाटा और नफा मिला करके आप ओवर अ पीरियड ऑफ 1 साल या 3 साल या 5 साल देखेंगे, तो नेट अगर आपको नुकसान ही हो रहा है तब वो बिजनेस करने लायक नहीं। बट मैं समझता हूँ ज्वेलर, मेरे अपने परिवार में ज्वेलर्स हैं, और मैंने उनसे इतना ही जाना है कि ये एक साइकिल है, जिस साइकिल के खराब साइड में अगर आपके पास माल पड़ा है या आपने कमिटमेंट कर दिया है तो आप बुरे फंसते हैं, और अच्छे साइड में आपको चिंता ही नहीं होती है क्योंकि सब कुछ अच्छा ही हो रहा होता है। चलो ये आपका। देन श्रेयांबू पुष्पेंद्र, सर माय ड्रीम इज टू बिकम एन IAS. I joined classes for the same, and every day I am preparing for the same, but at end of question comes that, will this be enough to complete my dream? देखो श्रेयाबा, पहले तो मैं ये बता दूं कि सिविल सर्विस
मैं एक नंबर फेंक रहा हूँ, 3 लाख वो ऊपर नीचे हो सकता है, 3 लाख लोग लेते हैं या 4 लाख लोग लेते हैं, एग्जाम लेते हैं। उसमें सिर्फ आजकल तो मुझे मालूम नहीं, मेरे वक्त में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उस साल 560 के आसपास पोजीशंस निकली थी। कई सालों में उसके बाद 1000-1200 भी निकलती हैं। लेकिन आप समझ लें कि 1000, एक हायर साइड में आप 1000 ले लें, और 4 लाख लोग अगर परीक्षा देते हैं तो 4 लाख में 1000 इज 400 में 1 इज 0.25%। 0.25% यानी 1000 में 2 लोगों का होगा, 2.5 लोगों का होगा या 3 लोगों का होगा, 997 का नहीं होगा। आप पहले तो दिमाग में ये बना करके चलें कि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में ये ऐसी परिस्थिति है जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। आप खाली अपने जन्म को दोष दे सकते हैं कि भाई 140 करोड़ के देश में ही क्यों जन्मा मैं। माली, जिबूती ऐसे कुछ और आइलैंड वाले भी हैं, पैसिफिक आइलैंड्स में, जहां पूरे द्वीप पे खाली 150-200 लोग रहते हैं, तो आई एम श्योर उसमें 4-5 तो मिनिस्टर्स ही होंगे। ये मजाक की बात है। आप हम सबको प्राउड होना चाहिए कि हमारा जन्म इंडिया में हुआ, क्योंकि ये जो स्ट्रगल है वो जितनी कैपेबिलिटीज लाता है इंडियंस में, उतनी कैपेबिलिटीज की मैं आशा यूरोप में भी नहीं करता। ओके, सो दैट इज वन आर्ग्यूमेंट। बट आपका ड्रीम अगर है आईएएस, तो कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो जरूरी है वो टेक्निक से परीक्षा में आंसर देना। कुछ नॉलेज को पकड़ने के तरीके होते हैं। किसी ने पूछ लिया कश्मीर में क्या प्रॉब्लम है, उसके ऊपर एक लेख लिखें, तो आपको शुरुआत करनी चाहिए थोड़ी बहुत हिस्ट्री से। प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मैं बताता हूँ कि थोड़ी बहुत हिस्ट्री से, उसके बाद करंट सिचुएशन क्या है, ट्रिगर्स क्या हैं, उसको सुलझाने के लिए सरकार ने किस किस तरह के स्टेप्स लिए हैं, उसमें चैलेंजेस क्या हैं, और लास्ट में आप कंक्लूजन लिखेंगे कि मेरे सुझाव से कैसे इस प्रॉब्लम को किया जा सकता है। अगर उसके आपके मन में 2 सुझाव हैं तो या तो ए या बी, और ए और बी दोनों को आपको उसमें जस्टिफाई करना होगा। ये मैं खाली एक प्रश्न को उत्तर देने के तरीके की बात कर रहा हूँ। इस प्रश्न को इस तरह से उत्तर देने के लिए आपकी तैयारी भी वैसी ही होनी चाहिए, आपकी राइटिंग भी वैसी ही होनी चाहिए। आप ऐसा ना हो कि जब आप लिखने लगे हिस्ट्री तो आपको 2000 वर्ड्स में वो आंसर पूरा करना है और 800 वर्ड तो आप हिस्ट्री ही लिखते चले गए। तो ये देखना होगा कि आपकी तैयारी कैसी है, उत्तर आपको कैसे देना है, और आपके सब्जेक्ट की चॉइस। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको, बहुत सारे आइडियाज आपको किसी आईएएस कोचिंग एकेडमी से, या फिर यहाँ पे अगर आप अहमदाबाद के रहने वाले हैं तो सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है स्पीपा, वहां जा करके एक बार थोड़ा समय बिताइए, आपको काफी आइडिया लगेगा। यज्ञेश पटेल कहते हैं, सर इट इज श्योर दैट द यंग इंजीनियर स्टूडेंट्स हैव वेरी ब्यूटीफुल आइडियाज एंड कंसेप्ट्स, so question is how to motivate them and guidance provided by professor so at least a way they can stand on their own platform। आपका शुभ नाम है यज्ञेश पटेल। यज्ञेश जी, जैसा मैं कह रहा था कि सपने सबके पास होते हैं, ड्रीम सबके पास होती हैं, और उस ड्रीम से आइडियाज बहुतेरे मार्केट में होते हैं, बट हर आइडिया एक बिजनेस स्टेज तक पहुंच जाए ये मुश्किल होता है, और बिजनेस स्टेज पहुंचने के बाद में वो सफल हो जाए वो अपने आप में एक अलग ही कहानी है। लेकिन अगर आपको उसको अगर एक प्रोडक्ट या बिजनेस का जामा पहनाना ही है उस आइडिया को, तो सबसे पहले जरूरी है उस आइडिया को प्रश्न करना कि आइडिया एक्सीलेंट लगता है इसलिए कि आप उसके टीचर हैं, या आप उसके दोस्त हैं, या फिर आपके मन में एक धारणा है कि ये बॉय इंटेलिजेंट है इसलिए जो भी ये कहेगा, जो भी आइडिया लेकर के आएगा वो ब्रिलियंट होगा। इन सब को मैनेजमेंट की भाषा में बायस कहते हैं। बायस, कोई बायस अच्छा या बुरा नहीं होता, लेकिन उस बायस के बेसिस पे जो आगे आप डिसीजन लेते हैं उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे आप कह रहे हैं कि सभी प्रोडक्ट्स के आइडियाज ब्रिलियंट हैं,
तो अगर ब्रिलियंट हैं तो आपके अगर कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ब्रिलियंट आइडियाज लेकर के आते हैं, तो आप में से एक दो लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि उनके लिए एक इकोसिस्टम का इंतजाम करें। अगर कहीं और मिलता है वो करें, नहीं तो अप्लाई करें अटल इंक्यूबेशन सेंटर ये सब में, और आप अपने यहाँ लें, या फिर आप इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करें। आई एम श्योर कि आपके कई स्टूडेंट्स कई अच्छे फैमिली से आते होंगे, उनके साथ आप एक इकोसिस्टम बना सकते हैं। आपके अपने डायरेक्टर, प्रोमोटर्स अच्छी फैमिलीज को और अच्छे बिजनेस से इसको जानते होंगे, उनके साथ मिल करके एक आप लोग फंड बनाएं। अगर आपको लगता है कि सभी आइडियाज ब्रिलियंट हैं, ब्यूटीफुल हैं, बट ब्यूटीफुल और ब्रिलियंट आइडिया समटाइम्स इज बिकॉज that you have not seen that before. You may not have been exposed, but that idea may already be there somewhere. जब आप किसी कई ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको स्टार्टअप्स वाले, जब वो जाते हैं किसी इक्विटी फंडिंग के लिए, तो जो सामने बैठा हुआ है, क्योंकि वो एक दिन में 25 ऐसे प्रपोजल्स को इवेल्युएट करता है, वो आपको एक ही प्रश्न में खत्म कर देगा। वो कहेगा आप जानते हैं ये प्रोडक्ट कितना, किस किस टाइप से, किस किस डिफरेंट फॉर्म में ये ऑलरेडी अवेलेबल है, और कितने आपके अहमदाबाद में कितने आपको लोग ऐसे मिल जाएं जो इसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे होंगे। और आपका प्रेजेंटेशन ये कहेगा देयर इज नॉट एनफ पीपल इन अहमदाबाद एंड सो आई एम टारगेटिंग अहमदाबाद। सो क्या होता है कि कई बार तो इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती कि वो प्रोडक्ट वाकई में नया है क्या। दूसरा, वो प्रोडक्ट नया दिखता है क्योंकि टेक्नोलॉजी कई तरीके से उसको यूज करके किसी चीज में नयापन लाया जा सकता है, बट वो आइडिया, वो टेक्नोलॉजी जब एक प्रोडक्ट का रूप लेगी, तो हो सकता है आप अगर टीचर हैं या आप अगर दोस्त हैं उस आइडिया वाले साथी के, तो आप खरीद लें, लेकिन उसका बिजनेस सक्सेसफुल तभी होगा जब वो आइडिया मार्केट में जाएगा और मार्केट में लाखों लोग उसके लिए प्राइस पे करने को रेडी रहेंगे। आप अपने अगर आइडिया को इवैल्यूएट करना है तो खाली ये मापदंड में आप टेस्ट करो कि किसी दिन क्या इस आइडिया को खरीदने वाले लाखों लोगों की लाइन लग सकती है। Then I'll take the next question. Redmi asked what SWOT analysis one should do to develop confidence to be entrepreneur in the beginning. Professor D.S. Modi. प्रोफेसर मोदी कुछ दिन पहले IIT बॉम्बे के कवि आर्या, प्रोफेसर कवि आर्या, आई एम श्योर यू वुड बी नोइंग हिम, या उनको सुना होगा आपने किसी संदर्भ में। वो आकर के वो काम ही वो यही करते हैं कि वो ये एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम्स बनाते हैं। रोबोटिक्स के ऊपर जितने टाइप के वो हैं उसके ऊपर वो काम करते हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज आते हैं उनकी रोबोटिक वर्कशॉप से। तो वो भी, उनके दिमाग में भी यही क्वेश्चन था कि बच्चों के पास आइडिया तो बहुत है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस कहाँ से लेकर के आएंगे। तो देखिए क्या है कि ना, मेरा मानना है, देखिए ये मैं किसी स्पेसिफिक फैमिली के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मेरा मानना है कि आजकल हम अपने बच्चों को जिस तरह से बड़ा करते हैं उसमें हम ये सोचते ही नहीं है कि उनके लिए ऐसे इनपुट्स कहाँ से लाएं कि उनका कॉन्फिडेंस बने। हम ये सोचते हैं कि जो वो कर रहा है उसके साथ ही वो कॉन्फिडेंस बनता जाएगा। और उस प्रोसेस में एक और बड़ा जो काम हम नहीं कर रहे हैं कि हर जगह कॉन्फिडेंस नहीं, कई बार क्या होता है कि फेलियर जब होता है ना, उसको फेस करना इतना मुश्किल होता है कि बच्चा धीरे धीरे या तो चिड़चिड़ा होता है या फिर अपने मन में ये धारणा बना लेता है कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं तो इसमें भी फेल किया, मैं तो उसमें भी फेल किया, मेरे पापा ने ये बोल दिया, मेरे माँ ने ये बोल दिया। हम लोग, हमारी पेरेंटिंग में है नहीं। एक जमाना था जब एक जॉइंट फैमिली में एक आदमी डांटता था तो दूसरा आदमी आकर के उसको ढांढस बनाता था, कॉन्फिडेंस बनाता था। आज वन साइडेड पेरेंटिंग हो गई। तो ऐसे में कॉन्फिडेंस जो है बच्चों में, आज हम सोच लें कि भाई एक आइडिया बनने से उनके दिमाग में कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्योंकि वो किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। यस, ISB, IIT, IIM ये सब में पढ़ने से एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं कि कौन सी स्वॉट एनालिसिस करें जिससे आदमी के बच्चे को लगे कि उसका कॉन्फिडेंस रेडी हो गया, तो ये मान लें आप कि जैसे एक भाषा होती है इंग्लिश,
वो आप करते रहते हैं, सालों लग जाते हैं तो भी उस तरह से नहीं आती। कॉन्फिडेंस बनने के लिए कई बार एक स्पार्क काफी होता है जब कुछ बड़ा सक्सेसफुल हो जाता है, अदरवाइज एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होता है। आपको अपनी वीकनेसेस पे काम करना होता है। आपको स्ट्रेंथ तो अपनी जगह है क्योंकि आप कर रहे हैं वो, इसीलिए वो स्ट्रेंथ है, लेकिन जो वीकनेस है वो स्ट्रेंथ आपको अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को मिनिमाइज करने के काम आएगी। लेकिन आपकी वीकनेस अगर आप एड्रेस नहीं हुई, मेरा मानना है कि आप वीकनेस को आइडेंटिफाई करें। किसी सब्जेक्ट की वीकनेस हो सकती है, बिहेवियर की वीकनेस हो सकती है, इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस की वीकनेस हो सकती है, किस तरह से आप एक दूसरे से बात करते हैं। वो लड़का या बच्चा या बच्ची जिससे भी बात करता होगा, अगला आदमी गुस्से में, अरे यार छोड़ यार, इसके साथ क्या बात करना, चलते हैं। इस टाइप के आपके दोस्त साथी ऐसी तो धारणा नहीं रखते हैं। वीकनेस पे काम करना बहुत जरूरी है। और हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम एज अ प्रोफेसर भी वीकनेस के बारे में बात लास्ट में करते हैं। हम सोचते हैं यार वीकनेस बताएंगे इसको तो ये बच्चा हमारे मतलब हमारे इन्फ्लुएंस क्षेत्र से बाहर आ जाएगा, वो कहेगा कि सर तो मेरे खाली गलतियां गिनाते हैं। बच्चों की भी ऐसी परवरिश नहीं हुई है, लेकिन अगर आप छोड़ देंगे ना इस चीज को, मैं अक्सर अपने बच्चों से इस बात के बारे में बड़ी बहस हुई थी कुछ वक्त, कई सालों पहले, कि अच्छा फ्रेंड कौन होता है, बेस्ट फ्रेंड कौन होता है। तो मेरा मानना है कि बेस्ट फ्रेंड वो होता है जो कि आपकी कमियों के ऊपर काम कर रहा हो, आपको कुछ गलत काम करने से रोक रहा हो। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि हाँ वो अच्छा फ्रेंड होगा। आप प्रश्न का उत्तर खुद ही दे लें। तो मेरा मानना है कि आप वीकनेस के ऊपर काम करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। I'll take the next question. Anokhi, sir, what type of factors and entrepreneurs have to be taken in mind during executing or thinking about ideas? What type of factors an entrepreneur? I don't know, Anokhi, आपके मन में क्या स्पेसिफिक सवाल है, बट एक जनरल आंसर इसका मैं यूं दे सकता हूं कि अगर आप आइडिया के बारे में अगर सोच रहे हैं कि वो आइडिया अच्छा है या बुरा है, तो जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले तो वो आइडिया कैसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। क्या वो आपकी ही प्रॉब्लम है या कई लाख लोगों की प्रॉब्लम है। ये जिस तरीके से आप उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, क्या वो आप सोच रहे हैं ये अच्छा सॉल्यूशन है, या फिर आपके दोस्त साथियों में, आई एम श्योर आप दोस्त साथियों के बीच में भी डिस्कस करेंगे ही और वो कहेंगे हाँ अरे बहुत अच्छा आइडिया है अनोखी, काम करो इस पे, हम तेरे साथ हैं, सपोर्ट करेंगे। नहीं, आपका बैरोमीटर एक न्यूट्रल ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको अचानक अगर आप एक आइडिया देते हो, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, वो आपका सही टेस्ट होगा। और दूसरा टेस्ट, आई एम श्योर कि जब आप किसी इंक्यूबेटर से सपोर्ट लेने जाएंगे तो वो कई प्रश्न आपको उस आइडिया के चारों तरफ पूछेंगे ही पूछेंगे। मेरा मानना है कि उस लेवल तक पहुंचने के पहले, जब क्योंकि आपको आइडिया के ऊपर काम करना है, तो प्रश्न आपके दिमाग में यही होने चाहिए कि क्या ये किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, नए तरीके से सॉल्व करता है, जो आज आप उस प्रोडक्ट या सर्विस का रूप देख रहे हैं, क्या उसमें सोना चांदी हीरो मोती जड़े हुए हैं, ताकि वो यानी कहने का मतलब है कि कोई चीज का सॉल्यूशन अगर आज 1000 रुपए में मिलता है, आपने बहुत बढ़िया सॉल्यूशन दे दिया लेकिन वो 1 लाख रुपए की मशीन बना दी, तो वो आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन बिजनेस उसके चारों तरफ बनेगा या नहीं बनेगा, इसमें प्रश्न हो सकते हैं। तो आपको अगर एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है किसी आइडिया के बारे में, अच्छा या बुरा के लिए, तो आप इस बारे में प्रश्न करें कि ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और क्या ये प्रॉब्लम आपके दोस्त साथी रिश्तेदार कॉलेज फ्रेंड्स इनके बाहर भी जो दुनिया है उनकी भी वही प्रॉब्लम है क्या। क्योंकि कई बार आपके नजदीकी लोग आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं जिससे आपको बच के रहना है। 1+7 writes, I am Jash. Thank, my dream is a PhD in mechanical engineering. Please do it, Jash. Please do it. इंडिया में बहुत कमी है अच्छे PhDs की, अच्छे नॉलेजेबल लोगों की। हमारे यहाँ सतही नॉलेज को आजकल मैं उसको व्हाट्सएपी नॉलेज बोलता हूँ। हमारे यहाँ व्हाट्सएपी नॉलेज वाले एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा, हमको रियल एक्सपर्ट्स की जरूरत है। हमारी
जनसंख्या भी बहुत बड़ी है, हमारे प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़े हैं और उसी तरह से हमारी अपॉर्चुनिटीज भी बहुत बड़ी हैं। आने वाला वक्त आप देखेंगे कि स्पेसिफिक नॉलेज, पीएचडीज और एक्सपर्ट्स के लिए माना जाएगा, उनके लिए ये समय बेहतर होगा। जनरलिस्ट को बहुत कम इज्जत मिलेगी, आप ये मान के चलें। रिया मखानी पूछ रही है, सर कैन ए कंप्यूटर इंजीनियर कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर? इफ पॉसिबल देन व्हाट शुड अ कंप्यूटर इंजीनियर हैज टू डू? What steps should a computer engineer has to follow to become a successful entrepreneur? ये आपने पूरा MBA मांग लिया रिया मुझसे। ये तो सारे प्रश्न के उत्तर इन्हीं प्रश्नों में हैं। मेरा मानना है कि जरूरी नहीं है आपके लिए कंप्यूटर इंजीनियर होना एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के लिए, लेकिन आज की दुनिया में, आज के संदर्भ में टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेसेस को सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट सपोर्ट मिलता है और इसीलिए जो सॉफ्टवेयर, ऐप, मॉडलिंग, डेटा एनालिटिक्स और पाइथन और ऐप टेस्टिंग, ये जितने तरह के क्लाउड, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारे जो हैं वो कंप्यूटर इंजीनियर के बस की बात इजीली है, क्योंकि वो ये सारी चीजें पढ़ता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप खुद भी नहीं बनना चाहोगे तो कोई ना कोई दोस्त साथी, अगर आप एक अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर होंगे तो कोई ना कोई दोस्त साथी आपको पकड़ लेगा कि चल यार ये काम करते हैं, और आप न चाहते हुए भी आप एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा आपका है, इफ पॉसिबल देन व्हाट शुड द कंप्यूटर इंजीनियर हैज टू डू? भाई देखिए, पहले तो आपके मन में एक ड्रीम होनी चाहिए कि आपको कुछ बड़ा करना है। आपको बिजनेस में जो अनिश्चितताएं होती हैं, जो रिस्क्स होती हैं, उसके साथ आपको जीना आना चाहिए। अगर आपके परिवार में सभी सरकारी नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो आई एम श्योर आपको ये प्रॉब्लम होगी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में कि नहीं यार ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग बिजनेस बनना होगा तो बन जाएगा, कभी करना होगा तो कर लेंगे, अभी तो सरकारी नौकरी खोजते हैं। पहले तो आपको एक ड्रीम रखना होगा, और क्योंकि आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो आपको एक अच्छे बिजनेस, मार्केटिंग वाले और इन्वेस्टमेंट वाले को खोजना चाहिए और तीनों मिल करके एक अच्छा बिजनेस करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप तो यही है। और ये तीनों जब ही आएंगे साथ में, जब एक आइडिया पे एक मत्ता होगी, तो उस आइडिया पे आपको काम करना होगा। बाकी बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं इतने छोटे से समय में शायद इतनी बातें मैं टच नहीं कर पाऊंगा। कितना समय और है मेरे पास में, धारा? So, can we now take a few, one or two questions from the Facebook Live? We are live on Facebook, and so we have a few questions there. All right, okay. So, can you read out those questions to me? Sure, sir. Sure, sir. So, we have a question from Praful Bharadia, who is from LM College of Pharmacy. That considering the tight academic schedule of the students, how can a faculty inculcate a mindset of innovation and entrepreneurship? Okay. अरे ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी बच्चों के दिमाग में रहता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कॉलेजेस में कि हमारी सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस लगती रहती हैं, और अगले दिन कोई न कोई प्रोफेसर इसलिए गुस्सा हो जाता है कि आपको कहा गया था कि आज ये होगा क्लास में, ये नॉलेज डिस्कस किया जाएगा क्लास में, और आप कुछ तैयारी करके नहीं आए हैं। तो क्या हम क्या मशीन है? क्या हमारे पास में और कोई प्रायोरिटीज नहीं है? तो आप ये मान के चलो, द चॉइस ऑफ टेकिंग अप अ कोर्स एंड डूइंग इट इज अ चॉइस दैट यू मेड when you passed class 12th, that you will become a pharmacy engineer or pharma graduate. The system of education in India is driven by AICTE and UGC, and unless you are in a private university which have their own ways and means, there is a set standard through which you have to pass the exams. Now, next level, passing the exams for some means getting good marks or otherwise
campus placement will not happen, so I must study hard. तो वो तो आप मान के चलें कि वो बंदा नौकरी के लिए चिंतित है कि नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए होंगे नौकरी के लिए, तो वो दिन रात मेहनत करे। बाकी लोग जो है, और मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि वो जो बाकी लोग हैं वो 50% से ज्यादा लोग हैं। आई डोंट नो विच ब्रैकेट यू विल फॉल इन, बट अगर आपको मेहनत करनी है तो आप एक सपने के चारों तरफ मेहनत करें, तो आपको जिंदगी में सफलता अपने लेवल पे अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए ज्यादा मिलेगी। अगर आप मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि आपको मार्क्स लाने अच्छे हैं, तो वो मेहनत उस लेवल पे वो मेहनत जरूरी है। अगर आप मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास एक आइडिया है, बी फार्मा जो है वो तो मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरे को ग्रेजुएशन करना है, लेकिन उसमें भी पास होना तो जरूरी है। कल को जब आप दिखाएंगे किसी को कि आप कर क्या रहे हैं और क्या वो सही किया अपने लाइफ में, तो उसके लिए क्या ग्रेजुएट भी हैं क्या आप? आजकल तो ये भी नहीं पूछता। देखिए, टू बी अ गुड एंटरप्रेन्योर यू डोंट नीड टू बी अ वेरी गुड स्टूडियस स्टूडेंट, बट अगर आपने सोचा है कि वो पूरा करना है, तो देखिए उस कॉलेज की जिम्मेदारियों को आपको पूरा करना पड़ेगा। मैं कभी भी एडवाइस नहीं दूंगा कि आपके प्रोफेसर जिस तरह से चाह रहे हैं कि आपको ये कोर्स करना चाहिए, तो वो उनके एक्सपेक्टेशंस पे आपको थोड़ा बहुत खरा उतरना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप इस चीज के बीच में मारे जा रहे हैं कि मैं अपने आइडियाज के पीछे भागूं या अपनी स्टडीज के पीछे भागूं जिसमें बहुत समय लगता है, तो आप सोच लें कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कॉलेज कोर्सेज छोड़ करके बिजनेस शुरू किए हैं। मेरा किसी फॉर्मल पढ़ाई की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन कर रहा है किसी एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया के ऊपर आप बड़े स्ट्रांगली काम कर रहे हैं, तो आप समय निकाल करके उस आइडिया के ऊपर काम करें। कम से कम 5-6 महीने कुछ ऐसे समय पे काम करें जैसे आपका 1 साल का एग्जाम फाइनल खत्म हो गया है। उस पॉइंट पे जिस दिन आपका एग्जाम खत्म हुआ है, अगर आपकी हिम्मत है, मैं दोबारा कह रहा हूं इस चीज को, कि जिस दिन आपका एग्जाम खत्म हो उसके नेक्स्ट डे से आप डबल मेहनत करो, 14 घंटे काम करो अपने आइडियाज के ऊपर, तो अगला एग्जाम आने के पहले आपके पास 6-8 महीने का सॉलिड काम होगा। अगर आपको एक ड्राइव है एंटरप्रेन्योरशिप की, तो आप ऐसा कर पाएंगे। नहीं तो देखिए, मतलब कोई आसपास खड़ा नहीं जो आपको पुश करेगा, आपको अपनी पुश खुद ही बनानी पड़ेगी, अपने सपने खुद ही संजोने पड़ेंगे, अपना रास्ता खुद ही अख्तियार करना पड़ेगा। देयर इज नथिंग फ्री इन लाइफ। कोई किसी का हाथ पकड़ के चलेंगे तो जिस दिन वो छोड़ देगा उस दिन आप अपने आप को असहाय मानेंगे। इसलिए अपने ही ऊपर विश्वास करें। जो ज्यादा जरूरी है उस काम के ऊपर समय को देखते हुए ज्यादा फोकस करना जरूरी है, तो जरूर। we can take another question from Facebook. Yes, sir. There is one more question from Jainam. His question is that he has an idea, but he is unable to decide whether he should go ahead with his education or he should take the risk of becoming an entrepreneur. Okay, ask him what is his age. Yes, sir. So I am guessing that the student, he might be just a student, because if he's asking whether I should complete my education or go after an... So he wants to. He is unable to decide between his master, whether he should go ahead with masters or... Okay. Yes, sir. All right, understood. Masters. There was a time before December 2019, when there was no corona. Let me rephrase. Once upon a time, there was no corona COVID-19 virus. And then December 19, China happened. The future of education, today morning there was a conference going on, what is the future of education? Probably the days of premium education is going to be redefined. You would not need to be at an IIM or at Harvard, Stanford University to get that education. Please keep that in mind. 2, the open schooling of India, the open universities in every state
give you this possibility to graduate at any point of time in your career. Just a stray example, आप जेलों के अंदर डबल ट्रिपल मास्टर्स भी देखेंगे. वो तो कोई क्लास नहीं गए, कैदी हैं, पढ़ रहे हैं, समय है पूरा, और उन्होंने 2-2, 3-3 मास्टर्स डिग्री ले लिए. दिस ऑल थ्रू ओपन यूनिवर्सिटी रूट. कहने का मतलब ये है इंस्टीट्यूट चाहिए, या जो भी अच्छा इंस्टीट्यूट आपको मिलता है वो चाहिए, या जो अच्छी पढ़ाई है आपके हिसाब से जिसका स्कोप है मार्केट में वो चाहिए. The question is, अच्छी education in the post corona will be able to complete your graduation, post graduation through open universities. You will also be a graduate, postgraduate while you are working on your business idea. If there is an idea, the time is today to execute that, because by tomorrow somebody else will pick up this idea in your colony, in your class, in your college, and he can become more successful and he will take away the market from you. एक महीने की लेट भी काफी होती है, क्योंकि फर्स्ट मूवर एडवांटेज का जो बहुत बड़ा गेम है एंटरप्रेन्योरशिप में, उसको अगर आपने खो दिया तो फिर आप स्ट्रगल करते रहेंगे उस लीडर के पीछे. हर इंडस्ट्री में लीडर एक ही होता है, हर क्लास में फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट एक ही होता है. Go ahead and run behind your idea rather than looking at a postgraduate. Postgraduate will happen. I tell you, अगर खाली एक स्टैटिस्टिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो तो जितनी जगह 100% या 50, 60, 70, 80% प्लेसमेंट्स होता है, वहां सबसे पहले प्लेसमेंट एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स का होता है किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी, और उसकी तनख्वाह भी ज्यादा होती है. और मान लीजिए अगर आप 2 साल का एंटरप्रेन्योरशिप एक्सपीरियंस लेकर के जा रहे हैं जो फेल हो गया है, तो जैसा मैंने बताया आपकी वैल्यू कुछ कम नहीं हुई है, उसकी भी वैल्यू बहुत है. और जब आप बात करेंगे ना लोगों से, तो उनको आइडिया लग जाएगा कि इस बंदे को तो छोड़ना ही नहीं है. तो फॉरगेट अबाउट कि व्हेन विल द नॉलेज कम, फॉरगेट अबाउट कि बेस्ड ऑन दैट नॉलेज व्हाट विल आई बी एबल टू अचीव, बट पहले वो एबिलिटी लेकर के आओ. और अगर आपके पास एक सपना है तो सपना और एबिलिटी दोनों एक साथ करो, एंटरप्रेन्योरशिप पे चलो पहले, मेरा मानना है. या फिर कोई अच्छा सा सॉफ्ट सा कोई पोस्ट ग्रेजुएशन उठा करके और साथ में आइडियाज अगर आप कर सको तो कर लो, चाहो तो आप. मैं समझता हूँ 1-2 और क्वेश्चन यहाँ से ले लें क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इधर, और लेट अस सेट अप अ टाइम. मे बी Dhara, so we can take one last question. Yeah, there is a lot of response I see. We can actually have another session. Sure, sir. Definitely, sir. The next so there are a lot days. of questions. So let me take one last question. If you have read all the question, can you pick up the best question out of these for me? So there is one question, like as there are different policies which are being implemented, we have a question from the professor as to how they can motivate their faculty so that they can motivate the students further and change their mindset. Yeah, this is a difficult question, I would say. I have been a vice chancellor, but I have not been able to get an answer there. I have been a dean, very difficult. I had a center. I am a senior professor, but this is a difficult question because every professor brings his life, his knowledge, his comfort, his confidence, and his weaknesses as well at the job. There is a sense of entitlement which he gets because he is part of a certain college institution, and 2 is because he has certain abilities. प्रोफेसर का माइंडसेट जो है थोड़ी रिजिडिटी ज्यादा होती है. इसीलिए मैंने देखो मेरी लाइफ में मैं किसी एक प्रोफेशन के साथ ज्यादा वक्त इसलिए भी नहीं रहा होगा शायद कि मैं नहीं चाहता होगा कि उसकी, जैसे फॉर एग्जांपल सिविल सर्विस, गवर्नमेंट जॉब क्लास 1 की रही हो तो भी हर पल अगर आपको ये क्वेश्चन खाएगा कि मैं डिसऑनेस्ट हूं या नहीं हूं,
मैं ये चीज खाऊं या नहीं खाऊं, ये लूं या नहीं लूं, ये सारी चीजें जो हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द क्वेश्चन oh, I lost that question somewhere. Professors. So it's very difficult to, it is very difficult to understand the mindset of a professor and influence it. That is the challenging part. Now, how can it be done? Given that the efforts on the part of director or head of institution or a senior professor has to be on 2-3 lines. One is that person has to feel that sense of comfort with you. Otherwise, he or she will not listen. And even if they listen, the moment they get out of your room or chamber, they will throw it in the dustbin. Your sense of comfort, your ability to influence your juniors or colleagues, or as a director, all the people reporting to you, your ability to influence them is a direct factor of what is your own influence on them, whether they accept you as a leader. So the first thing you need to work is on yourself. The next thing that you can work on is show them the possibilities. So once they are ready to listen to you, show them some real possibilities. If you are at an institution जहाँ पे अक्सर promises होते हैं और वो promises मीट नहीं होते, उनको ठीक ढंग से निभाया नहीं जाता, तो वो आपके रूम से बाहर निकल करके यही दिमाग में रहेगा कि हाँ बहुत सारे promises इसके पहले भी ऐसे हुए हैं, सब कहीं सुनी हुई बातें हैं, देखा जाएगा जो होगा. So your action will not have any consequence. So which means that you do what you speak. You lead the way, you do what you speak. अगर ये environment वहाँ पे नहीं है तो थोड़ा और मुश्किल होता है. Third, ये दोनों होने के बाद में you have to show them the opportunities that can be directly taken by them. Don't show. So ये काम भी आप ही को करना है कि don't show them utopian opportunities. अरे दुनिया यहाँ से वहाँ चली जाएगी, तुम यहाँ से वहाँ पहुंच जाओगे, ये सब कहानियां वो सब जगह से सुनते हैं. आप क्योंकि करके दे सकते हैं उनके लिए, आप सबसे रेलेवेंट आदमी हैं जो फर्क ला सकता है उनकी सोच और जो हो रहा है उसके बीच में. तो आप उनके सामने वही अपॉर्चुनिटी ला करके बताएं जो कि अचीवेबल है, और फिर आप कहो उनको कि भाई अब तुम्हारे हाथ में है, तुम कहीं से कहीं पहुंचना चाहते हो तो तुम्हारी अपनी ड्राइव होगी कि कहीं पहुंचना चाहते हो. नहीं तो देखिए मेरा मानना है कि 90% से ज्यादा लोग जो है ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं. और मेरे ख्याल से जो प्रोफेसर्स होते हैं, एकेडमिशियंस, वो उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है क्योंकि वो दिन रात यही देखते हैं ना कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे करोड़ों कमा रहे हैं और वो खुद हजारों में रह गए हैं. तो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट उनके मन में नहीं रहता है, एक सेंस ऑफ स्ट्रगल की भावना वो बहुत जल्दी उनके अंदर जागृत नहीं होती है, इसलिए उनको थोड़ा हायर लेवल ऑफ मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है. बट देखो, आप ये मान के चलो कि अगर आपने जगा दी किसी के अंदर में, एक अभिलाषा जगा दी, एक ड्रीम जगा दी. मैं लास्ट इन्हीं लाइन से खत्म करना चाहूंगा क्योंकि टॉपिक भी यही है कि ड्रीम जगाना बहुत मुश्किल होता है, तो किसी और के सपने पे आप अपना भविष्य नहीं बना सकते. तो ये काम डिफिकल्ट होता है किसी को कन्विंस करना, एक एकेडमिशियन को कन्विंस करना, बट उसके बीच जो स्टेप्स हैं वो मैंने आपको बताया, उतना जरूरी होता है. आप एक ऑथेंटिक आदमी, एक ऑथेंटिक लीडर के रूप में अगर आप नहीं जाने जाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो अथॉरिटी के बेसिस पे आप किसी को सपना नहीं जगा सकते.